now that we have understood the journal entries, we have understood the various aspects related to debit and credit. One very important thing that we need to go through is the concept of combined or compound journal entries. Now, what is this combined or compound journal entry? When there is only one transaction, but in that single transaction you have got more than two accounts. Normally हमने अब तक के जितने भी transactions देखे हैं उसमें कितने accounts थे? दो, एक डेबिट वाला, एक क्रेडिट वाला. But when you have got a single transaction, but you have got more than two accounts, and you have to give the effect to both those accounts or all those accounts in a single transaction, then in that case it becomes a combined compound transaction, for which we need to pass the combined journal entry. Like if I have been given goods sold to Ram of rupees 5,000 and Mohan of rupees 8,000. This is a single transaction in which you have sold the goods to whom? Ram as well as Mohan. तो इस ट्रांजैक्शन को या तो आप दो पार्ट में तोड़ के लिखो, गुड सोल्ड टू राम अलग और गुड सोल्ड टू मोहन अलग, या तो इस तरह से इसको रिकॉर्ड करो, या तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू लिखो. Now, if I want to write this through the journal entry, which is a single journal entry, what we call as the common journal entry or a combined journal entry, one account that is getting affected is sales. Second account that is getting affected is Ram, and the third one is Mohan. Even though it is a compound or combined journal entry, even after that the total of debit is going to remain same as total of credit. आपके क्रेडिट में दो अकाउंट हैं, डेबिट में एक अकाउंट है, डेबिट में दो अकाउंट है, क्रेडिट में एक अकाउंट है, मतलब आपके जर्नल एंट्री की टोटल मैच नहीं होगी, ऐसा नहीं है. Even after that the debit total will be equal to credit total. क्यों? Sales to Ram of 5,000, sales to Mohan of 8,000. So the total sales are of 13,000 or not? So how will I write this particular journal entry? Ram and Mohan being the receiver of benefit, Ram and Mohan will be debited. So I'll pass the entry as what? Ram account debit rupees 5,000, क्योंकि राम को गुड्स तो हमने 5,000 के बेचे ना, इसलिए राम के आगे कितना अमाउंट आएगा? 5,000. मोहन अकाउंट डेबिट rupees 8,000, because the goods sold to Mohan are of 8,000, to sales account rupees 13,000. Why 13,000? Because the total sales that has taken place is of 13,000, being credit sales against bill number ... and ... क्योंकि दो अलग अलग कस्टमर्स को हमने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं. इज इट पॉइंट राइट? नाउ सपोज आई हैव बीन गिवन कैश कलेक्टेड
from Ram allowing 5% discount. अब राम से टोटल रिसीवेबल कितना था पिछले ट्रांजैक्शन के हिसाब से 5000 में से हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया 5%, दैट इज 250 रुपीज। तो हमको मिला कितना रिसीव्ड इज 4750 और नॉट। So is it the case we will pass the entry only for 4750? Answer is no. क्यों? क्योंकि अगर हमने सिर्फ 4750 की एंट्री की तो यहां राम को डेबिट हुआ 5000 पर क्रेडिट होगा सिर्फ 4750। सो 250 विल बी द डिफरेंस विच विल अपीयर इन राम्स अकाउंट। हालांकि वो 250 मिलने वाले नहीं है। सो वी नीड टू कैंसिल दैट 250 एज वेल और नॉट। और क्योंकि वो हमने डिस्काउंट के तौर पे दिए हैं, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए खर्च है, राइट और नॉट। सो इन दिस केस द अकाउंट्स विच आर गेटिंग अफेक्टेड आर कैश अकाउंट फॉर 4750, डिस्काउंट अकाउंट फॉर 250 and RAM account for 5000. Cash is coming in, therefore debit. Discount is expense, therefore debit. And RAM giver for 4750, therefore credit. And cancelled 250, therefore credit. याद है क्या रूल? डेबिट when the amount is receivable, credit when received or to be cancelled. तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इफेक्ट इसका? कैश अकाउंट ऑन द गिवन डेट, कैश अकाउंट डेबिट 4750, discount allowed account debit rupees 250 to RAM account 5000. Yes or no? Being cash collected allowing the discount of 5%. Did you people understand this? तो जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और फिर भी हम लोग उन सब का एक ही जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड और अ कंबाइंड जर्नल एंट्री। In case of a combined or compound journal entry, the total of debits will still remain equal to the total of credits. Is the concept clear? पहले नोट लिखते हैं, फिर आगे के एग्जांपल्स करते हैं. Write down compound journal entry. Also called as combined journal entry. When in a single transaction
when in a single transaction more than two accounts get affected, more than two accounts get affected, still we need to pass a single journal entry for that, it is a compound or combined journal entry. It is a compound or combined journal entry. Next point. In a compound entry, we may have more than one debit and oblique or more than one credit. Next point. Even though there are multiple debits and or credits, even though there are multiple debits and or credits, sorry, the total of debits will be equal to the total of debits will be equal to the total of credits. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जिस किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको मल्टीपल डेबिट्स मल्टीपल क्रेडिट्स मिलते हैं, फिर भी आप सिंगल जर्नल एंट्री करते हो, तो उसे हम लोग हमेशा कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्री ही कहेंगे. ऑलराइट, ऑब्जर्व इट. दिनेश started business investing rupees 2 lakh cash and also brought in vehicle of rupees 50,000, furniture of rupees 3 lakh and machinery of rupees 2,50,000. Now we need to pass a single entry for this. What has happened? Dinesh started the business. So one account that is getting affected is Dinesh's capital account, because Dinesh is the giver of benefit. He is starting the business, तो उसकी दिनेश की जगह क्या आएगा? दिनेश का कैपिटल.
दिनेश इज द गिवर, सो दिनेश विल बी क्रिएटेड फॉर दैट, करेक्ट. इसके अलावा क्या हो रहा है? देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख. एक व्हीकल आ रहा है बिजनेस में, कितने का? 50,000 रुपए का. कैश आ रही है 2 लाख, साथ में व्हीकल आ रहा है 50,000 रुपए, उसके साथ फर्नीचर आ रहा है 3 लाख रुपए का. और क्या हो रहा है? मशीनरी आ रही है 2.5 लाख रुपए की. सो वी विल बी हैविंग 5 अकाउंट्स इन अ सिंगल एंट्री. विच 5 अकाउंट्स? कैश, व्हीकल, फर्नीचर, मशीनरी, और ये सब ला कौन रहा है? दिनेश. सो दिनेश इज कैपिटल. इज द पॉइंट राइट? सो हाउ विल आई राइट द जर्नल एंट्री फॉर दिस? कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 2 लाख. व्हीकल अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि ये रियल अकाउंट्स हैं. कमिंग इन और नॉट? 50,000. मैं डायरेक्टली इफेक्ट दे रहा हूं. आई होप आई एम गोइंग फाइन फॉर एवरीवन. अब डेबिट क्रेडिट रियलाइज होता है या नहीं? रिकॉग्नाइज हो रहा है या नहीं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3 लाख. मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000. To what? Dinesh's capital or capital. Rupees 8 lakh. Being the various asset brought in the business. Various assets brought into the business. Got it? I hope you are continuously writing these all. है ना? Shall I come ahead? Shall I come ahead? Now suppose I've been given the transaction something like this. Salaries of rupees 10,000 paid by check and wages of rupees 5,000 paid by cash. थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं. सैलरीज पेड बाय चेक, वेजेस पेड बाय कैश. ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, करेक्ट. पर क्योंकि हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं, हमें एक ही ट्रांजैक्शन में ये बताया गया है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू सेपरेट जर्नल एंट्रीज फॉर दैट, for this also we can write a single entry as what?
पहले ट्रांजैक्शन में सैलरीज और बैंक अफेक्ट हो रहा है, करेक्ट। दूसरे ट्रांजैक्शन में वेजेस और कैश अफेक्ट हो रहा है, वेयर बाय सैलरीज एंड वेजेस आर नॉमिनल expense need to be debited or not, है ना। Whereas फर्स्ट पार्ट में चेक की जगह बैंक आएगा, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ही इज द गिवर एंड देयरफॉर बैंक विल बी क्रेडिटेड और नॉट। और सेकंड पार्ट में कैश इज रियल going out, therefore cash will also be credited or not, है ना। So what will be my journal entry for this? Salaries account debit। हालांकि ऐसी सिचुएशंस कम आती हैं, पर जब भी आए हमें तो आना चाहिए ना। 10,000 wages account debit 5,000 टू बैंक में से कितना पैसा गया 10,000। आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? एंड टू कैश अकाउंट 5,000। आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Even though there are multiple debits, multiple credits, still the accounting effects have remained same, being the expenses paid. Shall I? Now suppose the transaction that is given to me is Raju and Kalia started business मतलब राजू और कालिया दोनों कंबाइंड बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप है। राजू ब्रिंग्स इन ₹1,00,000 कैश and vehicle of ₹1,00,000. Kalia brings in ₹1,00,000 cash and furniture of ₹2,00,000। करेक्ट है? वापस वही कहानी हुई। आप इस ट्रांजैक्शन को अलग अलग भी लिख सकते हो, कंबाइंड भी लिख सकते हो। अब अगर कंबाइंड लिखना है, राजू ने 1,00,000 रुपए कैश लाया और 1,00,000 रुपए का व्हीकल लाया, वेयर एज कालिया ने 1,00,000 रुपए कैश लाया और 2,00,000 रुपए का फर्नीचर लाया। लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कैश इज कमिंग इन, therefore cash will be debited by ₹2,00,000. Vehicle and furniture are also coming in or not,
So vehicle will be debited by rupees 1 lakh, furniture will be debited by rupees 2 lakh. Raju is giver for 2 lakh. So Raju will be credited for 2 lakh. Kalia is also the giver, but Kalia is the giver of 3 lakh. So Kalia will be credited by 3 lakh rupees or not? Are you able to understand this? ये जरूरी नहीं है कि जितने का डेबिट उसी के अगेंस्ट उतने का ही क्रेडिट. आपके डेबिट्स के अमाउंट भी मर्ज हो सकते हैं, जैसे यहां पे कैश का अमाउंट मर्ज हुआ है. सो व्हाट इज द कंबाइंड जर्नल एंट्री दैट आई विल राइट फॉर दिस ऑन अ गिवन डेट? कैश अकाउंट डेबिट 2 lakh. Furniture account debit 2 lakh. Vehicle account debit 1 lakh. To Raju's capital. क्यों कैपिटल? क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाया है. ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. वेन एवर द ओनर ब्रिंग्स इन द मनी, एट दैट टाइम वी क्रेडिट इट टू द कैपिटल अकाउंट, अप्लाइंग व्हाट? द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. डिस्कस किया था, याद है क्या? राजूज कैपिटल रुपीज 2 lakh and to Kalia's capital rupees 3 lakh. Did you people understand this? Now tell me, अब लगभग 10 दिन हो गए अपने को नहीं स्टार्ट किया, 10-11 दिन हो गए. Are you able to understand the debits, credits? इफेक्ट समझ में आ रहे हैं? रेगुलर बैच में जब हम लोग फ्लो में जा रहे होते हैं, जब रूटीन डिस्कशंस चालू होते हैं, उस समय जब हम लोग फ्लो में जाते हैं तो रिलेट कर पा रहे हो? व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाई एम आई डायरेक्टली टेलिंग दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? ओके. which means what? The basic part, the core understanding of how to decide debit, how to decide credit, how to give the effects of that in the journal. यहां तक के हम लोग क्लियर हैं. अब इसके बाद की कहानी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कि हमको लेजर में इसे कैसे पोस्ट करना है, और लेजर में पोस्ट करने के बाद उसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है. These are two very important things. सिर्फ लेजर पोस्टिंग इज नॉट इनफ, लेजर का बैलेंसिंग भी करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेजर के बैलेंसेस है. मुझे कौन से कस्टमर से कितना पैसा आना बाकी है ये अगर पता लगाना है तो मुझे लेजर का बैलेंस करना पड़ेगा कि उसको मैंने कितने के गुड्स बेचे, उससे कितना पैसा आया, नेट अमाउंट इज रिसीवेबल और नॉट. And that thing is what we do in the ledger balancing. तो ultimately हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हर लेजर का बैलेंस. मैंने सैलरीज का खर्च किया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 6 months, मैंने कितना सैलरीज का खर्च किया, ये सैलरीज अकाउंट का जब बैलेंसिंग करूंगा तब न जाके पता चलेगा. And for that purpose we have to understand the next very important aspect that comes to the ledger posting and ledger balancing. But before I go into that ledger posting and ledger balancing, the first task that we have to do is to process the journal entries right, to go through the journal entries in the right way. अभी तक के मैं किसी भी जर्नल एंट्री में डेट नहीं लिख रहा था, but we have to write it in sequential order. हमें ट्रांजैक्शंस के डेबिट क्रेडिट इफेक्ट नरेशन के साथ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना होता है.
So what I am going to do today is I am going to share one sheet of journal entries directly now. अब वो मैं basic core terminologies, कौन सा अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट, डेबिट क्या, क्रेडिट क्या, इस पे नहीं जाता हूं. I will directly come on to the journal entries. तो जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं. फ्रॉम दैट जर्नल एंट्री क्वेश्चंस यू हैव टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू राइट द जर्नल एंट्रीज एंड यू हैव टू राइट इट. विच ऑल जर्नल एंट्रीज वो मैं ग्रुप पे बता दूंगा आपको, कौन कौन से क्वेश्चंस के आपको जर्नल एंट्रीज लिखने हैं, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट. टुमारो विल बी डिस्कसिंग दैट जर्नल एंट्रीज एंड विल ऑल्सो डिस्कस द लेजर पोस्टिंग. Sorry, not tomorrow. Tomorrow basic account lecture will not be there. Regular lecture है, but basic का lecture कल नहीं रहेगा. तो कल आज के लिए और कल के लिए क्या क्या होमवर्क रहेगा वो मैं आपको ग्रुप पे बताऊंगा. Day after tomorrow when we resume, on that day we'll be discussing with the ledger posting. Is the point right? So that's it for the day. We'll be meeting again tomorrow. Thank you. Day after. दरवाजा खोल दो यार, वो